نہ کھانا نہ پانی اور نہ ہی بجلی. اسرائیل کی کسیانی فوج سے اسی کی توقع تھی. حماس کے حیران کن حملے نے ہفتے کے روز اسرائیلی دفاعی نظام کی دھجیاں اڑائیں. بھارت سمیت دیگر دہشت گرد ریاستیں اس وقت اسرائیل کی obviously حمایت کر رہی ہیں، لیکن انہیں فلسطینیوں کی آوازیں کبھی نہیں سنائی دیتی. آج فلسطینیوں نے بتایا ہے کہ ہم اپنی آزادی لے کے رہیں گے، اور یہ ہندوستان جو اس وقت اسرائیل کی مکمل تائید و حمایت کر رہا ہے، مودی کو بھی نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اسی طرح وہ دن قریب ہیں جب کشمیری اٹھیں گے. سب سے بڑی جیل دنیا کی کشمیر ہے، پھر غزہ تھا. آج غزہ کی جیل ٹوٹی نہیں ہے، صرف آج سب کچھ اہل غزہ نے لے لیا. یہ آپریشن مسجد الاقصی میں اسرائیلی جارحیت کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے. اچھا، اس جنگ میں حسب معمول امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور بھارت نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی. جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ سب سے بزدل قوم دنیا کے اندر جو ہے وہ ہندو ہے اور یہودی ہیں، تو اس لیے اب یہ مجھے کوئی نہیں لگا چھمبے کی بات جب مودی نے مکمل تائید کی اسرائیل کی اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہے. سر میرے اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے غزوہ ہند ہوگی. مجھے شک بھرا یہ اسی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو غزوہ ہند وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اس میں جو ہے نا، اس میں انڈیا بھی ملوث ہوگا. جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی فلسطین کے خلاف جیتنے تک جنگ کا اعلان کر دیا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہم انشاءاللہ ان کفر کا مقابلہ کریں گے. سے مقابلہ کر سکتے، جیتیں گے اس ٹائم انشاءاللہ. یہ اللہ کا ہم پہ امتحان ہے. ہم اپنی دیکھیں، اسلام جب قربانی مانگتا جان دینی پڑے گی، ایسے نہیں. ہم انشاءاللہ اپنا خون دیں گے، اگر ہمیں بم باندھ کر بھی جانا پڑے ہم جائیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. জয়েন বন্ধুরা, গাদ্দার আমরা নয়, গাদ্দার তোমরা. তলোয়ারের ভয়ে সালোয়ার আমরা নয়, তোমরা পড়েছো. আমাদের পূর্বরা বাহাদুর ছিল, তাই আমরা হিন্দু, আর সামনের জেনারেশনও তো হিন্দু থাকবে. যদিও পাকিস্তানের কমেডি তো এমন চলতেই থাকবে. যেমন আফগান তালিবান যখন আসে তখন এই পাকিস্তানিরা স্বপ্ন দেখেছিল যে তালিবানরা কাশ্মীরকে আজাদ করে তাদের হাতে তুলে দেবে. এমনকি যখন ভারত আর কানাডার সাথে সম্পর্ক খারাপ হয় তখনও তারা স্বপ্ন দেখেছিল যে কানাডা কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে সেটাও পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবে. তো এখন যখন ইসরায়েল আর হামাস যুদ্ধ চলছে তো তারা স্বপ্ন দেখছে যে গাজার মতো কাশ্মীরকেও তারা আজাদ করে দেবে. যদিও তারা স্বপ্নের দিনও দেখুক বা রাতে, তাদের স্বপ্ন তো কোনোদিনই পূরণ হবে না. কেননা এইবার যদি তারা কাশ্মীরকে নিয়ে কোনো কিছু করে তো কাশ্মীর বাদ দিন, পাকিস্তান এবার কত টুকরো হবে তারা নিজেরাও গুনতে পারবে না. যেটা হোক সেটা তাদের ভাবনার বাইরে. তো বন্ধুরা শুনে নিন পাকিস্তানি মিডিয়ার গজব की बात. फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी. फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं. देखिए, वजह सीधा साधा ये है कि इजिप्ट जो है वो बिक गया है. 2 और 3 बिलियन डॉलर उनके फौज को लेके वो सीसी जो है वो बिक गया है. वो तो सबको पता था इजिप्ट तो कुछ करेगा ही नहीं, बल्कि इजिप्ट उनको मदद कर रहा है. नहीं, यूएई ने तो दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अटैक हमास का गलत था और ये था और वो था. तो इसका माने यूएई ने तो अपनी खुद इन्वेस्टमेंट ये वो देख के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है. अब सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि इस किस्म के अगर तुम जुल्म करो तो ये रिएक्शन होगा. ये है यार, दिस इज नथिंग. ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है. बिल्कुल. अब देखते हैं सर अगले आने वाले वक्त में जो है वो क्या होता है. वक्त کہ مودی کو اس پر جو ہے نا عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو کچھ آج فلسطین کر رہا ہے، فلسطین میں اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کشمیر والے بھی اٹھ سکتے ہیں اپنی آزادی کی جنگ میں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2 قضیے ہیں امت مسلمہ کے، ایک فلسطین اور کشمیر. آج کی اس جدوجہد کے بعد میرے کشمیری بھائیوں کو حوصلہ ملا ہوگا، مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کو بھی حوصلہ ملا ہوگا کہ یہ آزادی کی جو جدوجہد ہے یہ رک نہیں سکتی. آج ان کے ٹینک جو ان کو قتل کرتے تھے، جن کے گولے جو ہیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ چلتے تھے، آج وہ ٹینک روندے جا رہے ہیں اللہ اکبر کی صدا میں. یہ آپ بڑی درست بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، ضرور کھڑے ہوں گے. پورے اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ شورلی بھی نہیں چلائیں گے.
क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। जिहाद के लिए अगर हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे फौजी अफसरान हैं, अगर पाकिस्तानी अवाम को, यंगस्टर्स को ये जिहाद के लिए बुलाएंगे तो हम जरूर इंशाल्लाह उनके शाना बशाना होंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना इंडिया जो है ना इसराइल के साथ खड़ा होने के दावे कर रहा है। इंडिया का में जो है ना हम जहाज गिराते हैं, फाइटर जो है ना उनका जेट गिराते हैं हम लोग, ठीक है, वो उसका जो है ना बदला लेने क्यों नहीं आया? इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर सर कुछ भी नहीं होगा। गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा। बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है, गजवा हिंद होगी। मुझे शक भरा ये उसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा, यानी कि ये गज़वा हिंद से मुराद ये हमारा हिंदुस्तान, ये एरिया है, लेकिन इधर से जंग छिड़ेगी, फिर ये आलमी जंग। लेकिन ये फ़लस्तीन जो है, ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने फरमाया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। ठीक है, ये फ़लस्तीन भी एक नज़रिए से हमारा इसके साथ हम एक निस्बत है। हमें गज़वा हिंद मुसलमानों में ही होगा ना, इसमें पहले पार्टिसिपेशन जो मुसलमान ही है ना, फिर हिंदू हैं, काफिर हैं, ईसाई हैं, दूसरे मसलक हैं, लेकिन मुसलमान पहले नबी पाक ने फरमाया कि मुसलमानों के साथ जो कुफर है उसकी लड़ाई होगी। अब पूरे इस्लामी मुमालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है जी, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। क्या यार खड़े हैं ये जो फलस्तीन में जाकर हमारे फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। देखिए, वजह सीधा साधा ये है कि इजिप्ट जो है वो बिक गया है। 2 और 3 बिलियन डॉलर उनके फौज को लेके वो सीसी जो है वो बिक गया है। वो तो सबको पता था, इजिप्ट तो कुछ करेगा ही नहीं, बल्कि इजिप्ट उनको मदद कर रहा है। नहीं, यूएई ने तो दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अटैक हमास का गलत था और ये था और वो था। तो इसका माने यूएई ने तो अपनी खुद इन्वेस्टमेंट्स ये वो देख के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। अब सऊदी अरेबिया ने